بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب میں بڑی مشکل سے مجھے ملازمت ملی تھی۔ ملازمت کے بعد اگر کوئی مجھ سے یہ بھی کہتا کہ تم الٹے پاؤں چلنا شروع کرو تو شاید میں یہ بھی کر لیتا، کیونکہ سعودی عرب میں اتنی اچھی نوکری ملنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ میرے مالک نے مجھ سے کہا کہ اب تم اس نوکری کے لیے موزوں نہیں رہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بولے کہ فکر نہیں کرو، میں تمہیں اپنے ایک بہت ہی کھلے دل اور مضبوط انسان کے پاس بھیج رہا ہوں۔ وہ میرا دوست ہے، تمہارا خیال رکھے گا، اسے تم جیسے جیدار انسان کی ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور پریشانی بھی۔ میں یہاں سے کہیں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ میرے مالک کا حکم تھا سو میں وہاں سے چل پڑا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا کہ کہیں مجھے آگے جا کر اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ گھر میں 3 جوان بہنیں تھیں جن کی شادیاں کرنا تھیں، 2 چھوٹے بھائی تھے جو کہ پڑھ رہے تھے، تو یہ سارے خرچے میرے ذمہ ہی تھے۔ میں تو اپنی بیوہ ماں کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گھر سے مجھے ایک مضافاتی علاقے میں بھیج دیا گیا، لیکن یہاں مجھے کسی فیکٹری میں کام نہیں کرنا تھا، بلکہ بڑا سا ایک محل نما بنگلہ تھا۔ اس بنگلے میں رہ کر مجھے اپنی خدمات سر انجام دینا تھیں، پر بنگلے میں کیا کام کروں گا؟ گھر کے کام تو مجھے آتے نہیں، میں تو ایک معمولی سا انجینئر تھا۔ یہی سوچ کر میں پریشان تھا کہ کہیں مجھے کوکنگ جیسی کام پر تو نہیں لگانے لگے، میں تو کوکنگ جانتا نہیں تھا۔ خیر، مجھے مالک کے کمرے میں بھیجا گیا۔ میں نے دیکھا مالک بڑی روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ مالک کے سر پر بال نہیں تھے، آنکھیں گہری اور کالی تھیں جن میں ظلم بھی تھا، وحشت بھی تھی۔ میں 22 سال تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھا کانپ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ آرام سے بیٹھو، میں تو تم سے بہت خوشگوار بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کی یہ بات مجھے اور پریشان کر گئی تھی، لیکن کچھ حوصلہ ہوا۔ تب مجھ سے انہوں نے عجیب سوال کیا، تم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ جی، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے ان کو یہ بات سچ ہی بتائی تھی، میں واقعی میں 5 وقتہ نماز پڑھتا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میری خاطر ایک نماز چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں ایک نماز چھوڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بات سن کر مالک ہنسا۔ اگر میں تمہیں 5 لاکھ روپے ایک نماز چھوڑنے کے دوں تو کیا تم نماز چھوڑ دو گے؟ میری تنخواہ 1 لاکھ تھی، 5 لاکھ روپے صرف ایک نماز چھوڑنے کے۔ میں نے دل میں سوچا۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور میری خاموشی دیکھ کر مالک نے ایک نماز چھوڑنے کا 10 لاکھ روپے دوں تو کیا تم اپنی نماز چھوڑ دو گے؟ میں پھر بھی خاموش رہا تھا۔ لگتا ہے کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن میں بات بڑی سنجیدگی سے کرتا ہوں۔ میرے پاس مذاق کا یا پھر کسی بھی قسم کی فنکاری کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا تم 10 لاکھ روپے کی خاطر ایک نماز چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ جی ہاں، میں بہت مجبور ہوں۔ 10 لاکھ روپے کے لیے اپنی ایک نماز چھوڑ سکتا ہوں، قضا پڑھ لوں گا۔ میری بات سن کر ہنس پڑا۔ اچھا، اس کا مطلب گنجائش ہے۔ اگر میں تمہیں 50 لاکھ روپے دوں تو کیا تم پورے مہینے کی نمازیں چھوڑ سکتے ہو؟ مالک کی بات سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ لگا کہ جیسے وہ میری وفاداری کو آزما رہا ہے۔ جی نہیں، لیکن آپ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ مجھے وجہ بتائیں گے تو میں ضرور سوچوں گا۔ سوچنے کو تمہیں یہی کافی ہے کہ میں تمہیں 1 مہینے کے 50 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہو تو مجھے رات کو بتا دینا، میں تمہارے گھر والوں کو یہ رقم بھجوا دوں گا اور تم ان سے بات تصدیق کر کے پوچھ بھی لینا۔ مالک کی سخاوت پر یا اس انوکھی ضد پر میں حیران تھا۔ میں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ اس کے بعد مجھے اس کمرے سے لے جایا گیا۔ میں دوسرے کمرے میں پہنچ گیا تھا جہاں پر مجھے رہنا تھا۔ میں نے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ مجھے کام کیا کرنا ہے، لیکن مالک نے جو باتیں بتائی تھیں ان کے مطابق تو مجھے بس ان کا وفادار رہنا تھا۔ اب بات نمازوں والی تھی۔ میں کیسے نمازیں چھوڑ سکتا تھا؟ لیکن وہ رقم بھی کچھ کم نہیں تھی۔ میں نے جا کر
अपने अल्लाह से 1000 बहाने किए। मैंने कहा कि या अल्लाह, अगर मैं 1 महीने नमाज छोड़कर ही अपनी माँ की और अपने सब घर वालों की ज़िंदगी बेहतर बना सकता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने घर वालों के सामने कमज़ोर पड़ गया हूँ। ये आजमाइश बहुत बड़ी है। मैं परेशान हूँ। मैंने खुद को तो मुतमईन कर लिया था। रात को मालिक का एक बंदा मुझसे जवाब मांगने के लिए आया तो मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा कि मैं अपने मालिक की बात मानने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो आदमी चला गया। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। रात के वक्त वो दोबारा मेरे कमरे में आया। उसके पास एक मोबाइल फोन था। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हारे घर वालों का फोन है, उनसे बात कर लो ताकि तुम्हें हकीकत पता चल जाए। अम्मा की आवाज तो खुशी से लबरेज थी। क्या हुआ अम्मा, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैंने पूछा। अरे बेटे, तुम्हारे मालिक ने हमें 50 लाख रुपए भेजे हैं। ये बात सुनकर मेरी भी जैसे कि 50 लाख रुपए मालिक ने भेजे हैं। हाँ हाँ बेटे, तेरे ही मालिक ने भेजे हैं और कहा है कि तू 1 महीना अपने मालिक की हर बात मानेगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गया था। मैं समझ गया कि मालिक ने मेरी कीमत अदा कर दी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? मालिक मुझसे क्या चाहता था, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने जाकर अपने मालिक के सामने इस बात को भी सवाल बनाकर रखा, लेकिन इन्होंने यही कहा कि मुझसे कोई सवाल मत करो। अगर तुम्हें पैसा मिल रहा है तो बस पैसे तक महदूद रहो। जाहिर है उनकी बात भी सही थी। मैं खामोश हो गया, वापस अपने कमरे में आया। मुझे अब अगले हुक्म का इंतजार था, क्योंकि मैं जानता था मेरा मालिक सिर्फ नमाजें छुड़वाने के लिए ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी इन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरी वफादारी, मेरे यकीन को आजमाना चाहते हैं। मैंने सवाल जवाब किए बिना ही उनकी बात यकीन को आजमाना चाहते हैं। मैंने सवाल जवाब किए बिना ही उनकी बात मान ली थी, लेकिन अब मुझ पर पहरे रहते थे। मैं मस्जिद नहीं जा सकता था। अलबत्ता रात के वक्त जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में आता तो वजू करके आता और फिर बिस्तर पर ही पूरे दिन की नमाजें पढ़ लेता था, क्योंकि जब इंसान नमाज न पढ़ सके दिन भर तो वो ईशा की नमाज के साथ बाकी नमाजें अदा कर सकता है। अंधेरे में कोई मुझे देख भी नहीं सकता था। मैं अपने कमरे में नमाज पढ़ लेता और मालिक को खबर भी न होती। अलबत्ता मैं मस्जिद में नहीं जाता था। 2 दिन गुजर गए, मेरे मालिक ने मुझे कोई हुक्म नहीं दिया था। उस दिन मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं मालिक के कमरे में गया, देखा तो वो बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कहने लगे कि हाँ भाई, तुम्हें तो लगा होगा कि सिर्फ नमाजें छोड़ने के मैंने तुम्हें 50 लाख दिए, वो तो तुमने छोड़ी नहीं। तुम रात को नमाजें पढ़ लेते हो, मुझे हर हर बात की खबर है। कर हक्का बक्का रह गया। लेकिन फिक्र नहीं करो, बस मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए थी। तुमने एक बात के लिए रजामंदी दी, यही बहुत था। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए मैंने तुम्हें इस महल में बुलवाया है। अगर तुम वो काम कर लोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों को इतने ही पैसे मजीद भेज दूंगा। वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारेंगे। लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। अगर नहीं किया तो वो पैसे भी मैं वापस तलब कर सकता हूँ। मालिक की बात को मैं कैसे टाल सकता था? मैंने कहा, आप मुझे जो कहेंगे मैं अपनी फर्माबरदारी से वो काम सरअंजाम दूंगा। आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर जो बात मालिक ने मुझे कही वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतना घिनौना काम करना पड़ेगा। मैंने मालिक से और कोई बात नहीं की और बस हाँ में सर हिला दिया। फिर वो कहने लगे कि बाहर आओ। मैं तुम्हें अपनी बीवी अमानी के बारे में, मजीद की बीवी थी जिनकी हिफाजत पर मेरे मालिक ने मुझे मामूर किया था और तनख्वाह भी इसी बात की देनी थी। मैं परेशान भी हो गया था, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे अम्मा अब्बा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। खैर, मेरा मालिक मुझे घोड़ों के अस्तबल में ले गया, जिस महल की अकब पर बने हुए थे। महल जितना खूबसूरत था, अस्तबल भी उतना ही बड़ा था, जहाँ पर मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े बंधे हुए थे। ये क्या है मालिक? मैंने सवाल किया तो उसने कहा कि ये घोड़े हैं, मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े हैं। सब घोड़े मेरे इस्तेमाल में रहते हैं, कुछ मुकाबले के घोड़े हैं। लेकिन तुमने एक बात का खास ख्याल रखना है कि मेरी बीवी किसी भी घोड़े के पास न जा पाए। वो घुड़सवारी न करे, घोड़ों से दूर रहे।
खास कर उस सफेद वाले घोड़े से। मालिक की इस बात पर मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैं कोई सवाल भी नहीं कर सकता था। क्या मेरी ड्यूटी बस यही है कि मैंने मालकिन को घोड़ों से धा क्या मेरी ड्यूटी बस यही है कि मैंने मालकिन को घोड़ों से दूर रखना है? मालिक ये सुनकर हंस पड़ा। अरे नहीं पागल, तुम्हारी ड्यूटी जरा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तुम हर वक्त हर पल अपनी मालकिन के साथ रहोगे। जब मैं घर आऊंगा तो ही तुम उससे दूर जा सकते हो। साए की तरह उसके साथ रहोगे। वो जहाँ जाती है तो उसका पीछा करोगे। और मैं अपनी बीवी को बता दूंगा, वो तुम पर किसी किस्म की तनकीद या एतराज नहीं करेगी। बस वो आगे और तुम पीछे रहना। कभी भी उसके साथ बदतमीजी नहीं करना, उसके गुलाम बनकर रहना। मैंने मालिक को यकीन दिलाया कि उनकी बीवी मेरे लिए बहुत बाइज्जत होगी। मैं कभी बदतमीजी का सोच भी नहीं सकता। अगले दिन से मुझे ड्यूटी पर जाना था। रात को मैं अपने कमरे में था। एक लड़की मेरे कमरे में आई और बोली कि तुम्हें मालकिन बुला रही है। मेरे का क्या बात करना थी। मैं फौरन से मालकिन के कमरे में पहुंचा। देखा तो मालकिन अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक सुर्ख रंग का मखमली डिब्बा था। ये क्या है? मैंने नजर उठाकर पूछा था। तुम्हारे लिए तोहफा है, लेकिन इसकी एक कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगी। मेरा पीछा करते हुए इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी कोई हरकत मुझे बुरी न लगे। मैं मालिक से अपने पैसे ले चुका था, मजीद मालकिन से पैसे नहीं ले सकता था। मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे माफ कर दे मालकिन, लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। मुझे मालिक ने जो हुक्म दिया है मैं उसी पर कारबंद रहूंगा। तुम जानते हो क्या कह रहे हो। मैं तुम पर कोई भी इल्जाम लगा सकती हूँ। ये भी कह सकती हूँ कि तुमने मुझे हरास किया है। वो अलग बात है, वो आपका अपना दीन ईमान है, लेकिन ये मेरा दीन ईमान नहीं कि मैं अपने मालिक से बेवफाई करूं। अच्छा, अपने खुदा से बेवफाई कर सकते हो तुम, अपने मालिक के लिए जरा सी कुर्बानी नहीं दे सकते? एक औरत हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ जिसको हर वक्त पहरे में रखा जाए? मालकिन की बात मेरे दिल को लगी थी, लेकिन मैं किसी तौर पर भी अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकता था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन से वैसे भी ड्यूटी पर जाना था। मैं मालकिन की तरफ से काफी कमजोर पड़ चुका था। मेरे दिल में उनके लिए रहम आ चुका था। मालकिन सुबह उठी, वो कहने लगी कि मुझे एक जगह पर कुछ खरीदारी करने जाना है, तुम मेरे साथ चलो या फिर मैं खुद ही घोड़े पर चली जाती हूँ। मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। मालिक ने आपका घोड़ा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा रखी है। उफ़ो, क्या मुसीबत है। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए गाड़ी में बैठी। वैसे मालकिन, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? मैंने उससे कहा। हाँ पूछो। आप घोड़ा इस्तेमाल क्यों करना चाहती हैं, जबकि घोड़ा तो मार्केट तक भी नहीं जाता, सिर्फ जंगल तक ही जा सकता है? हाँ, बस मुझे घोड़ों से खास किस्म का इश्क है। लंबी कहानी है, मैं कभी तुम्हें ये भी सुनाऊंगी। तुम बहुत खुश होगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बातें मानना पड़ेंगी अगर तुम मेरे करीब रहना चाहते हो। मालकिन की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। काफी देर गाड़ी चलती रही, फिर उसने मुझे इशारा किया, बोली कि मेरे साथ बाहर चलो। गाड़ी एक सहराई इलाके में रुक चुकी थी। मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ सहरा के अंदर तक चलूं। गाड़ी के ड्राइवर को आगे आने की इजाजत नहीं थी। मैं उनके साथ सहरा वाले इलाके में आ गया। सहरा में और तो कुछ नहीं था। इन्होंने मुझे एक जीप के पास खड़ा किया और खुद आगे चली गई। मैं अब उनके भी नहीं सकता था। सोचा कि शायद वो किसी फितरी तकाजे की वजह से आगे गई हूँ, मुझसे पर्दा रखना चाह रही हूँ। लेकिन काफी देर हो गई, मालकिन मेरे पास वापस नहीं आई। मुझे अब परेशानी होने लगी। मैं जीप के पास ही खड़ा उनका इंतजार कर रहा था कि तकरीबन आधे घंटे बाद एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। फिर उसमें से मालकिन उतरी और मुझसे कहने लगी, चलो अब गाड़ी तक रुको। और हाँ, मालिक को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ ज़रूरी काम था, इसलिए मैं यहाँ तक आई थी। मालकिन की बात सुनकर मुझे इत्मीनान तो नहीं हुआ था। अगर ज़रूरी काम ही था तो वो मालिक को बताकर भी जा सकती थी। उस दिन मैं कुछ नहीं बोला। घर वापस आकर मैंने मालिक को हाजिरी भी नहीं दी, सीधा चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
सच बात तो ये है कि मैं मालिक से झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन रात के तकरीबन 1 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर 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 से दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मालिक का ही एक आदमी खड़ा था। मुझसे कहने लगा कि बाहर आओ। वो मुझे मालिक के कमरे में ले गया। मैं वहां गया तो मालिक गुस्से में भरा बैठा था। मुझे देखकर बोला, तूने मुझे नहीं बताया, लेकिन झूठ भी नहीं बोला, इसलिए मैं तेरी सजा माफ करता हूँ। लेकिन अब तुझे बदले में एक काम करना होगा, जाकर मेरी बीवी को जान से मार दो। मैं ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मालिक, मैं उन्हें क्यों मारूं, कैसे मारूं? सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, मालिक ने गुस्से से कहा, बल्कि अभी रहने दो। कल दिन के वक्त तुम उसे सड़क के बीचों बीच खत्म कर देना, और अगर कोई पूछे, पुलिस वगैरह तुम्हें तफ्तीश के लिए लेकर जाए, तो कहना कि मालकिन ने थप्पड़ मारकर तुम्हारी बेइज्जती की थी, इसी वजह से तुमने उसे जान से मार दिया। बेइज्जती की थी, इसी वजह से तुमने उसे जान से मार दिया। अब तुम्हारे एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। जाओ, मेरी नजरों से गायब हो जाओ। मालिक की बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं कैसे एक औरत की जान ले सकता था, और उसके बाद मेरा क्या मुस्तकबिल होता? लेकिन मैं डर चुका था। अब यहाँ से पीछे जाने का कोई भी वसीला बाकी नहीं रहा था। मैंने मालकिन के उठने का इंतजार किया। वो हस्बे मामूल सुबह तैयार होकर अपने किसी काम से निकली। मुझे आज बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। आधे रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मालकिन अपनी जान से हाथ धो बैठी, और मुझे भी अपने हाथ उसके खून से आलूदा नहीं करना पड़े। मैं हैरान था कि कुदरत ने ये सब कैसे कर दिया। कुदरत की करनी ऐसी कि पुलिस भी केस नहीं बना सकी, क्योंकि ये एक हादसा था, और मालिक ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी, काम इतनी आसानी से हो जाएगा। लेकिन आखिर मालिक मालकिन को मारना क्यों चाहता था, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। मैंने सोच लिया कि मैं मालिक से एक बार जरूर मिलूंगा, उससे इस राज का पता लगाऊंगा कि आखिर मालकिन को क्यों जान से मारा गया, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। लेकिन हैरत की बात थी, मालिक जो कि मालकिन की वफात के बाद बहुत ही ज्यादा अकेला और तन्हा हो गया था, उसने मुझसे मिलने पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि मुझे खुले दिल से इजाजत दे दी कि मैं उनसे मिल सकता हूँ। सो मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। जब मैं मालिक से मिला, मैंने उनसे पहला सवाल यही किया कि आपने अपनी बीवी को इतनी सख्त सजा किस बात की थी? क्यों आप उन्हें कत्ल करना चाहते थे? तुम अभी इन बातों को नहीं समझोगे, बच्चे हो तुम्हें क्या पता कि रकाबत क्या चीज होती है। फिर जो मालिक ने मुझे कहानी सुनाई, उसने तो मेरे कदमों कदमों तले से जमीन निकाल दी। मैं उस वक्त तुम्हारी उम्र का था, 20 साल का था, जब मुझे ये औरत पसंद थी। लेकिन उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी। ये छोटी बच्ची थी। फिर जिंदगी में आगे बढ़ता गया। मैं बैरून मुल्क अपनी पढ़ाई के लिए चला गया। जब वापस आया तो मैंने अमानी को देखा नहीं था। फिर एक दिन मैंने अमानी को घोड़ों के एक मेले में देखा। अमानी घोड़े पर बैठी रक्स कर रही थी। वो बहुत अच्छी घुड़सवारी करती थी, साथ ही साथ उसका घोड़ा उसके साथ रक्स करता तो लोग बहुत महसूस होते थे। बहुत सारे लोग उस पर नजरें जमाए बैठे थे, लेकिन एक मैं था जो उसे इज्जत देना चाहता था। मेरे अब्बा इस शहर के बहुत अमीर इंसान थे। मैंने अपनी बाप की दी हुई सारी जायदाद अमानी के नाम करने का सोचा। मैंने उसे शादी के लिए उसका हाथ मांगा, तो उसने जब मेरी जायदाद नाम करने वाली बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मानी ने सोचा भी नहीं था कि कोई उस पर इस कदर भी फिदा हो सकता है। फिर मैं तो उसको बचपन से जानता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे शादी की पेशकश इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की थी। अम्मानी इस शादी के लिए मान तो गई, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये मोहब्बत नहीं, एक समझौता है जो उसने अपने एक गरीब किस्म के आशिक को पालने के लिए किया था। मैं सोच नहीं सकता था कि अमानी मुझसे इतना बड़ा धोखा करेगी। मैंने अपना सब कुछ अमानी के नाम कर दिया और उसके बाद उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। पर अमानी का रवैया दिन ब दिन बदलने लगा। फिर मुझे यकीन होने लगा
کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے، تبھی میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تاکہ میں اسے ایک ہی بار اس کے کیے کی سزا دے سکوں، کیونکہ وہ مجھے چھوڑ کر اپنے اس غریب عاشق کے ساتھ بھاگنے والی تھی جس کے لیے اس نے مجھ سے شادی کا ڈرامہ رہا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسے اپنی ساری جائیداد کے ساتھ جانے دوں، اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ تم امانی کو ٹھکانے لگا دو، اور تم جو خدا کو چھوڑ سکتے تھے تو پھر ایک عورت کی کیا مجال۔ میں نے کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن امانی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں، اور یقین کرو میں تو امانی کو گھوڑے کے پاس بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ میں اس قدر رقابت رکھتا تھا ہر اس چیز سے جو امانی سے محبت کرے۔ وہ گھوڑا جو امانی کے جیتنے کی وجہ بنا تھا، میں نے اسے ایک آدمی کو فروخت کر دیا۔ امانی کو گھوڑوں کے پاس بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میرے اور امانی کے بیچ میں جو بھی آئے گا میں اسے مار ڈالوں گا، تو پھر میں کیسے برداشت کرتا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف ایک دھوکے کی خاطر کی ہے تو میرا برا حال ہو گیا تھا۔ بس اس دن سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ خدا نے میری محبت کا مان رکھنا تھا، اسے قدرتی موت دے دی، ورنہ شاید تمہارے پیچھے مجھے بھی ایک بڑی قانونی جنگ لڑنا پڑتی۔ اور اب تم آزاد ہو، میرا کام ہو چکا ہے، اور اس دولت کا میں کیا کروں گا؟ تم جتنی رقم چاہو لے جا سکتے ہو۔ میرے مالک نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ محبت میں اس قدر جنونی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔